Hello children, Namaskar. I hope you all are fine and safe. Yesterday we have started chapter number 5 in worksheet and today we are going to complete this worksheet. Okay, and I hope you all have written short and long question answers which was your yesterday's homework. So let's start with exercise F, filling the blanks with the correct words. Take out your pencil and do with me, okay? First one, dash is an example of a gas. Which is the example of gas? Oxygen or ice? So gas का example कौन सा है? Oxygen, right? So let's take the correct answer, oxygen, and then we will write here OXYGEN, oxygen. Second one, dash can be pour. सॉलिड और लिक्विड, किसको हम पॉर कर सकते हैं? सॉलिड्स को या लिक्विड को? सो द करेक्ट आंसर इज लिक्विड. सो LIQUIDS, लिक्विड्स. थर्ड वन, सॉलिड सच एज डैश कैन बी पॉर. सॉलिड में किसको हम पॉर कर सकते हैं? वी हैव लर्न दैट सॉल्ट एंड वाटर कैन बी पॉर, राइट? जब हम उसको मिक्स कर एक सॉल्यूशन बना दे वाटर के साथ तभी ही. ओके, सो सॉल्ट, SALT. फोर्थ वन, वाटर एग्जिस्ट इन डैश फॉर्म. वाटर कौन से कितने फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? राइट, सो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म. एंड व्हाट आर दे? Ice, water vapor and water. Fifth one, the process by which a gas changes into liquid. It is called dash, boiling or condensation. So what do we call it? Condensation, right? So let's take it and write here CONDENSA. You can write कंडेंसेशन. ओके, समाएगा नहीं तो आप नीचे भी लिख सकते हैं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज F. टेक आउट योर नेक्स्ट पेज. क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो एंड राइट देम इन द करेक्ट बबल्स. ओके, हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, थिंग्स दी हुई हैं. अब इस ऑब्जेक्ट्स को हमें लिस्ट आउट करना है ये बबल्स में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में. ओके, दिस इज एन एक्टिविटी, लेट्स डू टुगेदर. सो फर्स्ट वन इज मिल्क, राइट? तो मिल्क किस में आएगा? इन द सॉलिड बबल, लिक्विड बबल और इन द गैस बबल. सो मिल्क विल कम इन लिक्विड, राइट? सो हम यहाँ पे मिल्क लिख देंगे इन द लिक्विड बबल, राइट? अब हमने ये लिख दिया तो हम मिल्क को कट कर देंगे या फिर टिक मार्क भी आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज पेबल. पेबल मीन्स स्मॉल स्टोन. ओके, सो ये थिंग किस में आएगी? सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में? स्टोन्स दे हैव अ फिक्स्ड शेप, राइट? सो ये किस में आएंगे? सॉलिड्स में. सो वी विल राइट हियर PEBBLE, पेबल. आप टिक मार्क भी कर सकते हो एंड कट भी कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टीम. सो स्टीम विल कम इन विच कैटेगरी, विच बबल? Gases, right? So let's write in this gases bubble steam. Right. Then next is wind. Wind किस में आएगा kids? It's a moving air, right? So it will come in gas.
देन नेक्स्ट इज पेपर. पेपर किस में आएगा? सॉलिड. PAPER. Then next is ball. Ball also have a fixed shape, right? So it will come in solids. Ball. Next, pencil. Pencil will come in which bubble? Solid, right? So here we will write pencil. Next is water. Water can flow, right? It can be poured. So in which category it will come? In which bubble? Liquid. So here we will write WATER, water. Next, stone. Stone किस में आएगा? Yes, in the solid. So we will write here stone. I hope you all are doing with me. Next is book. Book will come in solid part. Next is juice. Juice किस में आएगा? Yes, in the liquid. JUICE. See, मैंने ऐसे dots किए. आप you can write number also. Okay, as you wish. Then next is chalk. Chalk किस में आएगा? In the solid, right? CHALK, chalk. Next is bead. See, bead means क्या? वो मोती जैसे आता है ना बड़े बड़े, वो उसकी बात है ये. Okay, so it will come in solid, right? Then next is air. Air किस में आएगा? Yes, in the gas. So here we will write then next is smoke. Smoke किस में आएगा kids? In the gas. And the last is fan. Fan will come in the solid. So here we have completed exercise G. आप लोग ये साथ साथ में करने लगो तो फिर आपको इतना होमवर्क कम करना पड़े. ओके, ये CW है आपका. Now come to next page. Now let's discuss question number 2, logical question answer. First one, Rahul dad is cooking in the kitchen. Rahul has come to know that his dad is making rajma without going into the kitchen, or his dad telling him. How do you think Rahul found out? Now Rahul के dad kitchen में खाना बना रहे थे, right? अब राहुल को ये पता चला, बट राहुल ना तो किचन में गया है वो, और ना ही उसके डैड ने उससे ये कहा कि मैं कुक कर रहा हूँ या क्या कुक कर रहा हूँ. सो हाउ डू यू थिंक राहुल फाइंड आउट? सो राहुल को कैसे पता चला होगा? सो किड्स, कैसे पता चला होगा? ये क्वेश्चन हमने स्किल बिल्डर में भी डिस्कस किया है, राइट? ये स्किल बिल्डर था चैप्टर नंबर 5 में. सो किड्स,
कैसे पता चला होगा पता है? बिकॉज ऑफ द अरोमा. अरोमा मीन्स व्हाट? स्मेल. स्मेल से पता चला होगा. राजमा की जो स्मेल हो रही थी, स्मेल आ रही थी. अब सी, स्मेल तो गैस में ही आती है, राइट? इट्स टाइप ऑफ गैस. सो गैस तो फैल जाती है, राइट? सो वो गैस, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी और वो गैस फॉर्म में है, राइट? खुशबू हम जब स्प्रे लगाते हैं वो भी एक गैस फॉर्म में ही होता है. यस और नो? सो जब उसके डैडी राजमा करी बना रहे थे तो उसकी जो स्मेल है वो बहुत डिस्टेंस में चली गई थी. इसीलिए राहुल को पता चल गया कि उसके डैडी क्या कुक कर रहे हैं, राजमा करी. ओके. सेकेंड वन, ऑब्जर्व थिंग्स इन योर किचन and make a list of things found in solid state, in liquid state and in the gas state. अब आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपके किचन में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी थिंग्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है एंड गैस फॉर्म में है. ओके. सो सॉलिड फॉर्म में आप जाना. ओके. आप किचन में जाना और देखना जो भी सॉलिड फॉर्म में हो आप वो लिखना, लिक्विड फॉर्म में है वो लिखना एंड देन गैस फॉर्म में है वो लिख देना यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट वन, वाई डू क्लोथ्स ड्राई अप फास्टर इन समर दैन इन विंटर? कैसे, क्यों फास्टर हो जाते हैं समर टाइम में? बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. वो ज़्यादा होती है समर में, राइट, दैन इन विंटर. ये नो, समर में बहुत गर्मी होती है, राइट? सन की जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, राइट? इसीलिए हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो समर टाइम में जल्दी ड्राई हो जाते हैं एज कंपेयर टू दी विंटर टाइम. ओके. फोर्थ वन, एवरी टाइम माया लीव्स अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफ़ी ऑन द टेबल, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन द ग्लास. वेयर डू यू थिंक द ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? अब माया जब भी कोल्ड कॉफ़ी पीती थी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी पीती थी तो उसके ग्लास के आउटर पार्ट में उसको थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स दिखते थे. तो वो सोचती थी ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं. ओके. सो किड्स, कहाँ से आते हैं ये ड्रॉपलेट्स? बिकॉज हमारे एयर में भी वाटर वेपर है, राइट? तो जब भी इस वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते थे उसकी ग्लास पे. फिफ्थ वन, व्हाट इज हैपनिंग टू द वाटर इनसाइड द केटल? अब यू कैन सी दिस केटल. अब अंदर क्या हो रहा होगा? व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द केटल? यस, द वाटर इज स्टार्टेड बॉइल, राइट? अब अंदर वाटर या फिर कुछ होगा तभी. सो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द केटल? केटल पे क्या हो रहा है? इट इज बॉइलिंग, राइट? बॉइलिंग हो रहा है. यस और नो? एंड सेकेंड वन, ड्यू टू डैश वाटर चेंजेस टू डैश. अब ड्यू टू हीटिंग, राइट? सो ड्यू टू हीटिंग द वाटर चेंजेस टू. जब हम हीट करते हैं तो वाटर किस में चेंज हो जाता है? इट चेंजेस इनटू स्टीम. यस और नो? वो स्टीम में बदल जाता है. So what is happening to the water inside the kettle? It is boiling. Yes. And second one, due to the heating, water is changes into steam. So here we have completed our chapter number 5 worksheet. Today you are going to complete this worksheet. Okay, जितना भी इसमें बाकी है जो आज मैंने करवाया है वो आप complete कर लेना. So chapter number 5 is completed in worksheet. If you have any doubt, you can contact me. And also here our term 1 syllabus is completed. Term 1 syllabus was chapter number 5, 6 and 7. Hope you all have understood this. So bye kids, take care, have a good day.